Confused where to start? UPSC. One decision can change everything. I'd like to thank Vajiram and Ravi. Vajiram current affairs test series. Vajiram का भी काफी help. Vajiram is the best. But Vajiram, it is something holistic. It helped me in boosting my confidence. Structured learning expert. Mentorship in latest results, top 10 out of 10 from Vajiram. Legacy of AIR 1. Trust. One name. Vajiram and Ravi. Hello, my name is Vishwajit Gupta and I'm recording this audio with DKT Studio, and we'll be discussing the strategy regarding the UPSC CSE preparation. So today I'm going to discuss the aspect of prelims in this examination, because over the years we have realized that the prelims is becoming very unpredictable. Not just in the sense that the difficulty is increasing, but the pattern of the examination is also changing every year, almost every year. Especially since 2018, we see a shift in the examination pattern, and since 2021, we see a variety of options being created, different type of questions being asked. So that has made the prelims examination very unpredictable. This is my understanding. तो prelims is not my strong part. तो इस वजह से क्या होता था कि बहुत सारी जुगाड़ करनी होती थी इधर उधर से, जहाँ से जो समझ में आता था, so as to be able to clear this examination. About the prelims journey, since this was my 4th attempt, so I gave my first prelims in 2022, और वो वाला prelims 4 मार्क्स से रुक गया था, 2 क्वेश्चंस का डिफरेंस था. 2023 में I gave again, और 2023 में prelims क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ and went till the interview stage, but final list में नाम नहीं आया. And now this was shattering again. So in the 2024 attempt, again prelims रुक गया, वो क्लियर नहीं हुआ. But since I have seen the entire process 3 times, so this attempt 2025 वाले, which was my 4th attempt, I prepared a strategy for the year, entire year. तो पूरे साल भर का छोटा छोटा चंक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ऐसा छोड़ना है. तो उससे काफ़ी हेल्प हुई. 2025 के प्रीलिम से पहले जो एक मेजर चेंज, not major change but a very dramatic shift in the mindset that I tried, was to limit the resources very religiously, very strictly. तो जितना पढ़ना था उसको पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि इसके बाहर नहीं जाएंगे, whether I'll be able to clear the exam or not. उस वजह से क्या हुआ, एक तो फोमो नहीं हुआ, दूसरी चीज़ कॉन्फिडेंस आया जब उतना एरिया कवर हो गया, और तीसरी चीज़ माइंडसेट एकदम रिलैक्स्ड रहा बिफोर द एग्जामिनेशन. सो दोज वर द थिंग्स दैट आई ट्राइड टू डू. नाउ one important aspect that I have realized in this prelims journey is the importance of PYQs. सारे टॉपर over the years हर कोई यही बोलता है PYQs बहुत important हैं, we need to do them religiously and all. I also listened to all these toppers और बहुत लोगों से इस बारे में बात भी की. But one thing that I have realized is कि PYQs को करने का भी एक तरीका हो सकता है, which was my own way of doing PYQs. So basically I tried is कि PYQs को I'll solve them backwards, but I will analyze them forwards. Now let's break it down. Solving it backwards means that I'll take out the, supposedly I'm giving the 2026 wala attempt. Okay, so if I were to be giving this 2026 attempt, then how would I prepare for it? What I'll do is I'll take out the 2025 वाले पेपर का प्रिंट आउट, I'll sit for 2 hours and solve that paper. 2 घंटे सॉल्व करने के बाद, टाइम पीरियड में उसको ख़त्म करने के बाद, उसका अगर कुछ एनालिसिस पढ़ना है या किसी आंसर जो मॉडल आंसर की आई हुई है उससे अगर उसे मैच करना है, कुछ उसमें थोड़ा बहुत ऐड करना है, कहीं पे कुछ नया फैक्ट मिला तो उस पेपर में उसको लिख लिया. नाउ आफ्टर डूइंग दिस ईदर इन द इवनिंग और इन द नेक्स्ट डे आई विल सॉल्व 2024 वाला पेपर. 2024 वाले पेपर के साथ आई विल डू द सेम थिंग, देन 2023, 22, 21, 20, 19 एंड सो ऑन. ये आई डिड टिल 2017 इन 18 का पेपर, जो बैकवर्ड सॉल्व करने वाला तरीका था. इसको हमने बैकवर्ड यहाँ तक पूरा 2 घंटे की सिटिंग में बैठ के सॉल्व किया. इसके बाद जो उसके पीछे के पेपर्स थे या उससे पीछे के जो ईयर्स के क्वेश्चंस थे, उनके लिए एक कंपाइल्ड पब्लिकेशन आती है by the name of Disha publication. So they have compiled all the questions and they have segregated it topic wise as well as subject wise. So we can refer to them. So in my second attempt when I was able to clear the prelims, ये वाली जो backward वाली चीज़ थी, I did this till 2013. तो जितने भी क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व किया till 2013, उनको बैकवर्ड सॉल्व करते गए और 2013 पे एंड किया. अब 2013 पे जब आपने सॉल्व कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद उसको एनालाइज करना. सो एनालाइज करने में while reading it,
सो फर्स्ट आई विल पिक अप द 2013 वाला पेपर. आई विल सी कि इस सब्जेक्ट से ये क्वेश्चंस आए थे और इन टॉपिक्स से क्वेश्चन आया था. सो आई मेक अ लिस्ट ऑफ से 10 टॉपिक्स फ्रॉम पॉलिटी, 8 टॉपिक्स फ्रॉम ज्योग्राफी और सम टॉपिक्स फ्रॉम इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, व्हाटएवर. सो दिस सॉल्व जो PYQs को सॉल्व करने का जर्नी था, इसको आई ट्राई टू कीप इट कंसोलिडेटेड और एक साथ. ऐसा नहीं कि एक पेपर सॉल्व किया फिर ब्रेक लिया 2 दिन का 3 दिन का फिर नेक्स्ट पेपर सॉल्व किया. नॉट लाइक दैट. आई केप्ट अ टाइम फ्रेम ऑफ अराउंड 7 days और 10 days जिसमें आई डिसाइडेड कि आई सॉल्व ऑल द PYQs दैट आई वांट टू. तो उनको एक दिन में 2 पेपर कर लिए. जैसे अगर 2 hour की सिटिंग वाला है, या एक दिन में 3 पेपर कर लिए, फिर अगले दिन खत्म कर लिया, अगले दिन कर लिया. एंड व्हाइल आई वाज गोइंग बैक फ्रॉम 2013 टू 1993, उस वाले पीरियड में सिर्फ क्योंकि कंपाइलेशन में एक सब्जेक्ट की 180 क्वेश्चंस है, 190 क्वेश्चंस है, 170 क्वेश्चंस है. सो इफ यू आर एबल टू फिनिश वन सब्जेक्ट इन अ डे, इवन दैट इज गुड. यू कैन डू मोर देन दैट ऑल्सो. एंड जब आप उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे देन यू हैव टू एनालाइज इट फॉरवर्ड्स कि अच्छा अभी ये टॉपिक आया है, अब इसके बेसिस पर नेक्स्ट ईयर उन्होंने ये टॉपिक पूछा था, इस बेसिस पर वी कैन अज्यूम कि नेक्स्ट ईयर ये टॉपिक आ सकता है. तो जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो स्ट्रांग बन जाती है. नाउ दिस माइट साउंड वेरी वेग, सो आई हैव gone back to my papers again and took out some of the examples that can justify this point. So one of the classic example that I remember from 2025 wala paper is the question of Arraghatta. Now this was a topic, this was a key term that was asked directly in the 2025 wala paper. इसको पढ़ने के लिए you'll have to be very thorough with the basic standard books that we prepare. But if you go back to the PYQs of history section, then you will see that a similar question directly asking the keyword was asked in previous years. That was before 2000s, I believe. तो I remember this because I was discussing it with my friend. हम दोनों बैठे हुए थे, बात कर रहे थे. And I asked him कि you tell me the answer of this question, and he answered it wrong. तो हम दोनों को वो चीज़ याद रह गई. And while I was attempting the 2025 वाला paper, the same keyword came, and that saved me time. That gave me 2 additional marks. That was very sure. So that helps. Other than that, we see a pattern emerging in the recent papers, which is since 2021, 2019, 2021, that they have repeatedly been asking questions on rare earths. So that is one aspect that they are asking. कभी वो mineral के बारे में पूछ लेंगे, या इसका सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ पर है, इसकी सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग कहाँ पर है, इस मेटल का या इस मिनरल का यूज़ किस टेक्नोलॉजी में हो रहा है, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनमें हो रहा है. Another example that they are repeatedly asking is the question of aircrafts. So they asked about the Rafale MiG in 2024 वाला paper. In 2025 वाले paper में they again asked aircrafts because there were some aerial tensions going on around the world. तो अगेन एक एयरक्राफ्ट वाला क्वेश्चन आया था. तो इस बेसिस पर वी कैन अज्यूम दैट समथिंग सिमिलर कोई डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर दे माइट आस्क अगेन because there are certain wars still going on. Another question that I saw very clear repetition is the question on fuel cell EV, which was asked in 2024, and another question was developed over it in 2025 wala paper, which was the question of alternative powertrain vehicles. So this was explicitly asked, जिसमें उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे, and how many of these can be considered as alternate powertrains. So that was a question directly developed from the previous year paper. Moreover, we see some repeated themes over the years in the prelims examination, which is spread across polity, economy, environment, science and tech, etc. One classic example is the question on 5th schedule, the question on president, governor, their powers. So that has been repeatedly asked. Also, not just the repetition directly per se, but they are asking those questions by slightly going in depth of it. So earlier the question was simply that such number of MPs will elect the president, or these are the powers of governor regarding STs or SCs. But now they are going in depth of it, that these are the policies that are made by the autonomous councils that are there. These are the powers that have been granted to the president. These questions on 5th schedule, 6th schedule, those are being directly asked. One question that I saw in 2023, 24, 25 wala paper is regarding the tea board and the turmeric board. Now those questions that are being asked, now we can search for them. हम कितना भी करंट अफेयर्स में जा सकते हैं, उसको ढूंढ सकते हैं, यहाँ से पढ़ा वहाँ से पढ़ा. But this question was directly inspired from the PYQs only. तो somewhere in around 20 years back, UPSC ने इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि टी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, या 4-5 इस तरीके के ऑप्शंस थे. अब उन्होंने उस क्वेश्चन का आंसर सिंपल दे दिया कि इसका ए मैचिंग बी है, इसका ये मैचिंग कर दिया.
बट अगर आप PYQs को जा रहे हो, नाउ व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस क्वेश्चन को देखोगे एंड देन यू विल गो बैक एंड गूगल टी बोर्ड के बारे में, व्हाट डज इट डू, क्या मैंडेट है, क्या वर्किंग है, अभी प्रेजेंटली उसने कुछ अच्छा काम किया है या नहीं. सेम यू विल डू विद टर्मरिक बोर्ड, कॉफी बोर्ड. जैसे उन्होंने कॉफी बोर्ड के ऊपर भी एक एग्जाम क्वेश्चन पूछा था कि ये यहाँ पर सिचुएटेड है, इसकी ओवरसीज ब्रांचेस हैं या नहीं. सो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. One another classic question that they asked is about polyethylene terephthalate, PET. Now this question has been developed over a span of around 4-5 years. So this question initially emerged in the 2018 or 19 का paper, then they developed in 2020 का paper, 21 का paper, 22 का paper, and still they are asking the similar question, but उसको और ज़्यादा in depth में जाके वो पूछ रहे हैं. Now what this show, all this analysis of PYQ doing and going back and analyzing is basically what, that once you have gone through the PYQs, आपने उसका सही आंसर देख लिया, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब आप उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा इन डेप्थ में जाके पढ़ें. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा था लास्ट ईयर 2025 में द टर्मरिक बोर्ड वॉज इन न्यूज़, तो आपने PYQ में देखा कि UPSC इस टाइप के बोर्ड्स पूछ चुका है जिसमें एक टर्मरिक बोर्ड स्पेसिफिकली मेंशन था. करंट अफेयर्स में टर्मरिक बोर्ड आ रहा है. नाउ दिस बिकम्स अ हॉट टॉपिक फॉर यू दैट UPSC माइट गो इन डेप्थ ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इस तरीके से जो एनालिसिस आप करोगे विद द हेल्प ऑफ PYQs. दिस वन मोर थिंग दैट दे आस्क्ड रिगार्डिंग पॉलिटी में भी. पॉलिटी में बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं. लोग बोलते हैं कि आप अगर रट लोगे तो आपका पॉलिटी क्लियर हो जाएगा, बट आई थिंक सारा रटने की नहीं ज़रूरत होती है. अगर आप थोड़ा स्मार्टली समझो तो they started with no confidence motion in the Lok Sabha. Then they went to a question on ethics committee in 2024, I believe. 2025 में फिर से वो इस टाइप के क्वेश्चन पे आए थे. अगर उन्होंने एक साल स्किप कर दिया है then it is highly probable कि वो नेक्स्ट ईयर फिर से इस चीज़ पे आ सकते हैं, because there has been a no confidence motion sort of thing. तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो PYQ एनालिसिस में काफ़ी काम आती हैं. Now one more logic that I want to discuss regarding this backward forward thing is I did it intentionally. तो अगर जब आप क्वेश्चन पेपर्स को बैकवर्ड सॉल्व करते हो, गोइंग बैकवर्ड्स, तो थोड़ा सा उनकी डिफिकल्टी बनी रहती है. अगर आप उन्हें फॉरवर्ड सॉल्व करोगे ना, अगर 19, 20, 21, 22 आपने सॉल्व किया, देन द पेपर बिकम्स इजी फॉर यू. तो आपका मार्क्स स्कोर इंक्रीज हो जाता है. और जब आप मॉक्स दे रहे होते हो या उन पेपर को आप सॉल्व कर रहे होते हो, तो बैकवर्ड करोगे तो क्वेश्चंस नए मिलेंगे, थोड़ी सी डिफिकल्टी भी रहेगी. और जब आप फॉरवर्ड करोगे तो ऑब्वियसली आपको एनालिसिस में समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चन आ रहा है, ये थीम आ रही है. इवन इन द पॉलिटी सेक्शन ऑल्सो, आई रिमेंबर पॉलिटी के लिए 2022 में जो क्वेश्चंस आए, जो टॉपिक्स आए, 23 में जो टॉपिक्स आए, 24 में जो टॉपिक्स आए, आई मेड अ लिस्ट ऑफ देम. और उनको बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ में लिख लिया था टेबल बनाकर. एंड आई कुड सी कि अच्छा ये 5 टॉपिक्स हैं, यहाँ पर पूछे थे, 5 टॉपिक्स यहाँ पूछे थे, इनमें से 4 टॉपिक फिर यहाँ पूछे थे. सो यू कैन अज्यूम कि एक ग्राफ बन रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, फिर से आए थे, फिर से आए थे, दोबारा आ सकते हैं. बस थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ना होगा आपको उस टॉपिक को जाकर. So that has helped me in my prelims examination. तो इस तरीके से we have discussed कि prelims में जो PYQs है उनको हम किस तरीके से utilize कर सकते हैं. Again, this is my personal take on it. People might differ on this, people might disagree on this also. But if this thing has worked for me, now how do I say this? Because 2023 वाले पेपर में I cleared with a small margin. सो थोड़ा सा अनश्योर रहता है कि अगर क्वेश्चन इधर उधर हुआ या एक आंसर UPSC से डिसएग्री किया तो उसमें इशू होता है. 2025 में आई वेंट टिल टू 1993 इन दी कोर सब्जेक्ट्स विच आर पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड हिस्ट्री. हिस्ट्री ऑल्सो इंक्लूड्स एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर. तो ये सारे टॉपिक्स पर आई वेंट टिल 1993, उनके सारे PYQs को किया. फिर उनका जो पैटर्न था वो देखा कि अच्छा ये टॉपिक्स आ रहे हैं. सी 1993 से लेके 2013 तक के पेपर में आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते थे. ये की टर्म है, इसका मतलब ये है, ये की टर्म है, इसका मतलब ये है, ये फैक्ट सही है या गलत है. बट 2013 के बाद से जो क्वेश्चंस थे ना वो मोर एनालिटिकल हो गए. तो अगर आपको बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज 2 घंटे बैठ के पूरा पेपर सॉल्व करना है, देन इट इज़ प्रेफरेबल एंड एडवाइजेबल कि आप 2013 के बाद से ये चीज़ कर सकते हैं. आपको अपने आप एक डिफरेंस नज़र आने लगेगा क्वेश्चंस में. और 2013 के पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको कंप्लीट करने हैं, लेकिन उनको आप सिंपल एक ऐसे स्टैटिक नॉलेज के तौर पर आप पढ़ सकते हो, क्योंकि 20 साल का 30 साल का एनालिसिस कोई आसान काम नहीं होता. सो इट्स ऑल राइट. नाउ कमिंग टू दिस थिंग ओनली, इसको अगर हम सब्जेक्ट वाइज भी देखें, सो आई हैव डिस्कस दी पॉलिटी वाला क्वेश्चंस. तो पॉलिटी में भी यू सी अ पैटर्न इमर्जिंग. प्रेसिडेंट की पावर्स के ऊपर क्वेश्चंस हर साल आता है, गवर्नर के ऊपर क्वेश्चंस आता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है,
स्पीकर, लोकसभा चेयरमैन, इन सब के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। एथिक्स कमेटी के ऊपर क्वेश्चंस आया था, फिफ्थ शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन आया था, गवर्नर की पावर्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हर बार क्वेश्चन डेवलप हो रहा है और क्वेश्चंस भी इवॉल्व हो रहे हैं, वो इन डेप्थ में जा रहे हैं इनके बारे में थोड़ा सा। सिमिलर थिंग अगर आप देखो तो इकोनॉमी में भी ये चीज़ आई हैव रियलाइज्ड कि थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है। सो इकोनॉमी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा, इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव और इफ़ यू आर अ फर्स्ट अटेम्प्टर, यू विल सी कि ये क्वेश्चंस या ये टॉपिक पर्टिकुलरली कहाँ से पढ़ना होगा। तो इकोनॉमी में आई रियलाइज कि आप एक स्टैंडर्ड सोर्स रखिए, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसको रिवाइज कर लीजिए, फिर आप वापस से इसी पैटर्न पर आइए। तो इकोनॉमी में भी आई हैव टेकन आउट एन एग्जांपल जिसमें दे हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन ऑन कोलैटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, CBLO, which is a money market instrument. Now this was a straightforward question in 2024 का पेपर। अब इस क्वेश्चन के बारे में अगर आप CBLO को थोड़ा सा सर्च करेंगे या आप मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को थोड़ा सर्च करेंगे तो फिर आपको रियलाइज होगा कि उसमें बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन आता है गूगल पर, एंड आप उसके बेसिस पर छोटा छोटा अपना नोट उसी पेपर में बना सकते हैं। डेवलपिंग ओवर दिस क्वेश्चन 2025 में दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, AIF, और उसके डिफरेंट 4 ऑप्शन दिए थे, इनमें से कौन कौन AIF में का पार्ट बन सकता है, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन 2025 में पूछा था। नाउ दैट इज वन क्वेश्चन दैट कैन बी डेवलप्ड और इट कैन बी डिसाइफर्ड बेस्ड ऑन द पैटर्न, कि अगर CBLO को थोड़ा सा आप सर्च करोगे तो आपको AIF मिल जाएगा। अदर देन दैट दे हैव आल्सो बीन आस्किंग क्वेश्चंस ऑन 2025 पेपर में, तो उन्होंने कुछ 2 न्यूमेरिकल भी दे दिए थे इन द इकोनॉमी का पेपर, इसमें गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशंस और डेट वगैरह जो भी एस्पेक्ट था वो उन्होंने उसको डिस्कस किया था। अदर देन दैट इकोनॉमी में दे आर ऑल्सो आस्किंग दी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, दी बॉन्ड मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, इसके अलावा जो गवर्नमेंट RBI का इंटरवेंशन होता है रिगार्डिंग दी मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द रुपी और जो उसका डिप्रिसिएशन अप्रिसिएशन हो रहा है उसके बेसिस पर जो डेट मार्केट में इम्पैक्ट आ रहा है, इसके बारे में उन्होंने पूछा था। तो ये टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको अगर आप 2018 के बाद से क्वेश्चंस देखोगे तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको बस इनके बारे में थोड़ा थोड़ा और सर्च कर लेना है, तो उससे आपकी इकोनॉमी में एक थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन में आप आ जाओगे फॉर द पीपल हु डोंट हैव अ इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, उनके लिए। बाकी जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है देन दे आर वेल एंड गुड। दे आर ऑल्सो आस्किंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग गवर्नमेंट बॉडीज इन द इकोनॉमी सेक्शन। So in the 2024 paper, they asked a question about the role of RBI in certain applications. 2025 वाले में they have not mentioned the government body which is SEBI. उसको directly mention नहीं किया, but they asked a question on this only, that there is no government body that regulates this investment scenario or the influencers that are happening in the country. तो which was a incorrect statement, अभी आंसर किया ही नहीं है, but I think it was an incorrect statement. So again they are going back to government bodies, asking them directly and indirectly. So that is one aspect that can be discussed or that can be analyzed in the economic section. In the geography also, geography has become very restricted, if I may say, in the zone or arena where they are asking questions. सो फिजिकल ज्योग्राफी से बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक ही चैप्टर से आ रहे हैं, बट उसको इन डेप्थ जाके छोटी छोटी मिस्टेक्स क्रिएट करके वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। फॉर एग्जांपल देयर वाज दिस क्वेश्चन ऑफ आइसोथर्म्स व्हिच वाज आस्क्ड इन 2025। नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल स्टैटिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन NCERT, but this question has been developed over the years on the basis of the physical geography questions that are being asked. So initially they asked about the concentration of water vapor in atmosphere. Next year they asked the question on the concentration of dust particles in the atmosphere. Then they asked about insolation, heating of the planet. Then they went to isotherms, so ocean heating, continental heating, इसके डिफरेंस के बारे में। So if you see पिछले 4 साल से वो पैटर्न डेवलप होता जा रहा है और उसके बेसिस पर ही वो क्वेश्चन आ रहा है। Now if you see a similar pattern emerging in the chapters of water, rivers, which is the drainage chapter, if you see such a pattern emerging in the soil chapter, then you can obviously go in depth of these topics. वहाँ से आप उनको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। हिस्ट्री में 2025 वाले पेपर में we have seen कि थोड़ा सा वो ancient medieval से हट के modern की तरफ ज़्यादा आ गए थे, but that cannot be considered as a pattern shift. It might be, but it cannot be generally considered as a pattern shift. क्योंकि प्रीवियस पेपर्स में 2023 में दे आस्क्ड डिस्प्रोपोर्शनेटली हैवी क्वेश्चंस ऑन मिडिवल हिस्ट्री, जिसमें मिडिवल किंग्स, चंदेला, परमारा, गुजर प्रतिहारा डायनेस्टीज के पूछे थे। 2024 वाले पेपर में भी दे आस्क्ड सच क्वेश्चंस, और 2025 वाले में दे वेंट टू मॉडर्न इंडिया, जो मॉडर्न हिस्ट्री में चले गए थे। गांधी जी का नॉन कॉपरेशन 2 क्वेश्चन उससे पूछ लिए थे उन्होंने। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, बट इसके लिए व्हाट वी कैन डू फॉर प्रिपरेशन इज अगेन गो बैक टू द PYQs. So there's this
वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी वेयर दे आस्क अबाउट द मंगोल इन्वेजन इन इंडिया। उस क्वेश्चन को उन्होंने पहले भी 3 बार पूछा हुआ है और रिसेंटली 2023-24 में उन्होंने फिर से उसे पूछ लिया था, 2022 में भी उन्होंने उस क्वेश्चन को पूछा था। तो अगर आप देखोगे फिर से आप पीछे सॉल्व कर लिया एंड देन इफ यू आर एनालाइजिंग इट फॉरवर्ड्स तो यू विल सी कि अच्छा सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही स्टेटमेंट है, बस थोड़ा सा कंटेंट या थोड़ा सा उसमें फैक्ट डेटा ऐड माइनस करके वो उस स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं। फिर आप उसको पुरानी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर प्लस जो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी है, उस नॉलेज के बेसिस पर आप उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। नाउ ये हमने बात की स्टैटिक सब्जेक्ट्स के बारे में जो कोर सब्जेक्ट्स हैं। इवन इन दी क्वेश्चन इन दी सब्जेक्ट्स दैट आर डायनेमिक व्हिच आर कंसिडर्ड डायनेमिक, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक एंड आईआर, यहाँ पर भी एक सिमिलर पैटर्न इमर्ज होता है। सो फॉर एग्जांपल इफ वी टेक आईआर एंड मैपिंग हैज अ सर्टेन ओवरलैप। तो अगर हम दोनों को देखें, आईआर वाले सेक्शन में दे आर आस्किंग सम मेजर डिस्टर्बेंसेस दैट आर हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। सो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स, मेजर फैमाइंस, मेजर माइग्रेशंस, ये सारी चीज़ें, वॉर्स ये जो चल रही हैं ऑल ओवर द ग्लोब, इसमें भी यूपीएससी हैज़ अ टेंडेंसी टू आस्क द वॉर्स एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स दैट आर नॉट सो मच इन द न्यूज़। ओके, सो दे हैव दिस फेवरेटिज्म टुवर्ड्स अफ्रीका। वहाँ पर ऑलरेडी 2 कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं पर इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर नहीं करता है। यूपीएससी इज अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दैट, वो उसको पूछते हैं। डीआरसी में जो कॉन्फ्लिक्ट है और सूडान में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में पूछते हैं। बट उन कॉन्फ्लिक्ट से आगे बढ़ के अब वो किस पर आ गए हैं, नेम ऑफ कंट्रीज एंड द ग्रुपिंग दैट दोज कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ। सो 2023 में उन्होंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि यूक्रेन की नेबरिंग कंट्रीज कौन सी हैं। सिमिलर क्वेश्चन 2024 में आया। 2025 में वो उसको एक नेक्स्ट लेवल पर ले गए जिसमें उन्होंने दे गेव अ लिस्ट ऑफ अराउंड 6-7 कंट्रीज और उसमें उन्होंने पूछा था कि इनमें से कितनी कंट्रीज नेटो का पार्ट है। Now this is a very if we look at it in the first instance, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि उसमें 30-32 से ज़्यादा कंट्रीज हैं, अराउंड 32 एंड और मोर कंट्रीज हैं नेटो का पार्ट है, 33-34 और ऐड हो गए हैं। बट अदर देन दैट देयर आर सर्टेन कंट्रीज इन यूरोप विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ नेटो। So what I did was I made a list before the prelims examination obviously. So I made a list of countries that are part of NATO, then countries that are part of EU but not a part of NATO. So the other list was smaller. It has around 7, 8 or 10 countries if I recall correctly. So I try to recollect these countries कि अगर ये आएंगी तो I'll be able to deal with that question. Hopefully वो question आया और उसमें out of 7 countries I was able to I knew about 6 countries whether they are part of NATO or not, and on the basis of that I solved that question. So that is the aspect of IR. In the environment in science and tech also they are asking, like I already discussed, they are asking heavily on defense technologies. So the utility of drones, the utility of artificial intelligence, remote sensing, the utility of aircrafts, the utility of missiles, these are being asked in prelims examination. और उसका थोड़ा थोड़ा एक हिंट आपको मेंस में भी मिलेगा. we'll discuss that in the later part of the video. तो वो एक चीज़ है. apart from that environment में भी they are asking constantly questions that are on emerging technologies. so waste water treatment के बारे में जो technologies हैं, microbial technologies को लेकर जो questions हैं, they have also asked questions on energy sufficiency. तो जो new renewable energy या energy reclamation के जो projects होते हैं उनके बारे में वो questions पूछ रहे हैं. 2025 में if I recall correctly they asked a question of the pumped water storage को किस तरीके से हम energy में convert करते हैं. तो that is another aspect. उस बारे में आप थोड़ा सा देख सकते हो. साथ ही साथ I discussed about rare earths. Now that is one topic that I really appreciate UPSC for asking because they are 2 steps ahead of the world in this. जो न्यूज़ आपके पास 6 महीने, 10 महीने, 1 साल बाद न्यूज़पेपर्स में, इंडियन जर्नल्स में आएगी, UPSC has already asked a question in the previous year examination on that topic. So that is one thing that they are really ahead in. तो उसमें आप क्या कर सकते हो? There are various compilations by different private entities or different governmental bodies और intergovernmental bodies also, जिसमें उन्होंने जो दुनिया के क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो दुनिया के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उनके बारे में एक पूरा प्रोजेक्शन बनाया हुआ है टिल 2030 और बियॉन्ड, जिसमें उन्होंने ये चीज़ सेग्रीगेट की हुई है कि किस कंट्री के पास कितना मिनरल है, उस मिनरल की सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग कैपेसिटी किस कंट्री के पास है और उस बेसिस पर उसके जो स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स बन रहे हैं अराउंड द ग्लोब, उनसे कैसे डील किया जा सकता है. सो आपको पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़नी है, यू कैन इवन समराइज इट यूजिंग दी
the new AI models that we have. But the point is that you need to see those graphs and those pie charts and those tables wherein they have segregated and put in separate columns ki ye for example UPSC asked about cobalt. So UPSC asked a very basic question, which country has the highest reserves of cobalt? Now the answer was DRC, Democratic Republic of Congo. But over that, अगर नेक्स्ट ईयर्स में सब्सिक्वेंट ईयर्स में दे स्टार्टेड आस्किंग कि अच्छा ये वाले मिनरल के बेसिस पर आप इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हो, इस मिनरल के बेसिस पर या इस जो भी मेटल है इसके बेसिस पर हम इन 4 टेक्नोलॉजीज में यूज़ किया जा सकता है क्या. तो अब ये एप्लीकेशन बेस पर आ गए हैं. धीरे धीरे दे माइट कम इनटू इसको आईआर से लिंक करके जो चोक पॉइंट्स बनते हैं या जो कॉन्फ्लिक्टेड रीजन बन रहे हैं उनके बारे में आ सकते हैं. तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन प्रिडिक्ट और यू कैन स्लाइटली थोड़ा सा उस पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सकती है. अदर देन दैट प्रीलिम्स में आई हैव रियलाइज्ड कि सर्टेन क्वेश्चंस आते हैं जो पिछले 5-7 साल से तो आई हैव सीन देम वेरी रिलीजियसली हैपनिंग कमिंग अगेन एंड अगेन, जिसमें बहुत ही ज़्यादा ब्लेटेंट स्टेटमेंट्स होते हैं, इफ़ आई मे बी बोल्ड इनफ टू से. सो फॉर एग्जांपल इन 2025 वाले पेपर में दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन दैट all UAVs can do this, all UAVs can do this, all UAVs can do this. So unmanned aerial vehicles which is drone in our parlance. तो इसके बारे में उन्होंने 3 स्टेटमेंट्स दिए थे कि सारे UAVs ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं. Now you can't be very sure कि सारे UAVs ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते. So these type of statements can be generally considered as wrong. Generally considered, इसमें भी exception हो सकता है. Now they asked another question which was again developed over 2024 वाला question. 2024 में they asked about the presence of plastic in chewing gums. So that was one question जो काफ़ी थोड़ा controversial रहा था, लोगों को लगा कि होता है या नहीं होता है, जो भी था इशू. 2025 के बेसिस पर उन्होंने सेम क्वेश्चन उसी टाइप से डेवलप किया, एक नया क्वेश्चन जिसमें उन्होंने पूछा था कि हाउ मेनी ऑफ दीज आइटम्स कंटेन प्लास्टिक. नाउ दिस इज सच अ जनरल क्वेश्चन और इसमें नॉलेज लगाने से ज़्यादा कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत है. 2024 वाले पेपर में यूपीएससी ने उस क्वेश्चन को, उस स्टेटमेंट को करेक्ट माना था कि च्यूइंग गम्स में प्लास्टिक होता है, ऑन द बेसिस ऑफ सम रिपोर्ट्स दैट आर देयर. अब यही क्वेश्चन उन्होंने 2025 में पूछा. नाउ दे आर अगेन आस्किंग कि इनमें से कितने के पास कितने आइटम्स में प्लास्टिक हो सकता है. अगर आप 2024 वाली यूपीएससी लॉजिक से जाओगे देन ऑल ऑफ देम माइट कंटेन प्लास्टिक बिकॉज इट कैन बी देयर एज एन इंग्रेडिएंट, इट कैन बी देयर एज अ कंटामिनेंट. तो इस बारे में आप देख सकते हो. अगेन अनदर क्वेश्चन दे आस्क्ड दैट नो वायरस कैन डू दिस, नो वायरस कैन डू दिस, नो वायरस कैन डू दिस. सो यूपीएससी कांट गो अराउंड चेक एवरी वायरस इन द प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड सम वायरसेस दैट आर स्टिल नॉट डिस्कवर्ड कि वो ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं. सो सच क्वेश्चंस आर जनरली कंसिडर्ड इनकरेक्ट कि कोई वायरस ऐसा नहीं कर सकता, कोई वायरस ऐसा नहीं कर सकता. हो सकता है कोई वायरस हो जो ऐसा कर सकता हो, वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ पर वो अर्थ पर हो. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जनरल अंडरस्टैंडिंग के साथ जाना होता है कि भाई ये सही नहीं हो सकता है. और इस टाइप के क्वेश्चंस जो सम ऑफ दीज कैन डू दिस, सम ऑफ दीज कैन डू दिस, सम ऑफ दीज कैन डू दिस, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप हमेशा करेक्ट की तरफ ले जा सकते हो बिकॉज कोई ना कोई ऐसा एस्पेक्ट होगा उस वो जो भी आइटम है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, वट एवर इट इज, उसका एप्लीकेशन कहीं ना कहीं वहाँ पे किया जा सकता है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जनरली करेक्ट मान सकते हैं. सो दीज ऑल थिंग्स वी विल रियलाइज व्हेन वी विल सी द पीवाईक्यूज कि यूपीएससी का एक टाइम फ्रेम है, यूपीएससी का एक बाउंड्री लाइन है जहाँ से वो क्वेश्चंस डेवलप करती है. बस वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस और जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस होती है वो बहुत स्टैंडर्ड होते हैं. So those were my things that I tried to do in my prelims. There's just one more thing that I want to add since prelims was not my strong part. So I've tried very hard to work on the prelims aspect. Prelims को regarding there's this fresh test series in the market which is by the Robot 2.0. उनका जो प्लेटफॉर्म है उड़ान by the robot.com, वहाँ पर उनकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है. So they came out with their prelims test series last year only, which was their for initial edition. And they have a really high hit ratio in the prelims examination. In fact, not just in the GS paper, in the CSET paper also. So they have, so they made a prediction that the CSET में जो reading comprehension होगा, which will be, it can be very lengthy, so as to increase the difficulty of the CSET paper. And we found something similar in the 2025 CSET paper. Moreover, the type of questions and the options that जो option framing होती है जिस टाइप से वो बना रहे हैं, that is also very of top-notch quality, which is not there easily available in the market. So I appreciate जो उन्होंने effort डाला है, उनकी टीम ने डाला है. For example, there was this question of Article 6 of Paris Agreement.
Now this was a very new question if we look at it in the first glance, but this question was there in their test series जिसमें उन्होंने 6.1, 6.2, 6.4 आर्टिकल्स के भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया था, उनकी यूटिलिटी के ऊपर पूछा था, बट यूपीएससी ने उसके ऊपर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा. सो सच इज द लेवल एंड डिलीजेंस दैट दे आर पुटिंग इन देयर टेस्ट सीरीज. So I think that has helped me. So if I have to summarize my approach towards prelims and what helped me in dealing with the fear of prelims is these things only, that restricting the boundaries. जितना पढ़ना था वो पहले डिसाइड किया, उसके बाहर नहीं जाना है, फोमो में नहीं जाना है, अननेसेसरीली पागल होकर करंट अफेयर के पीछे नहीं भागना है, यहाँ से भी पढ़ लो वहाँ से भी पढ़ लो. बेटर टू रिवाइज एंड रिटेन. Doing PYQs very religiously, that has helped me. It has in fact given me a comfortable edge in the 2025 वाले exam में, so that I was able to clear comfortably. Third thing is the utility of robot की test series. That was very helpful. जो उन्होंने approach लगाई है पेपर को लेकर, जो diligence उन्होंने दिखाया है, that is praiseworthy. I also discussed about demarcation of the material that I had to study. तो उसको limited करने के लिए I made a very small framework which worked for me, might work for you. So there are 7 subjects in prelims examination, which includes polity, geography, economy, history, environment, science and tech and IR. More or less इन 7 subjects में prelims का syllabus we can cover. थोड़ा सा अगर उसको और हम डिसाइफर करेंगे तो हिस्ट्री को वी कैन ब्रेक इनटू एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर भी उसमें ला सकते हैं. सो ऑल दोस थिंग्स. नाउ दीज 7 सब्जेक्ट्स एंड while completing these subjects I made a 5-point framework that first of all I'll do NCERTs, standard books, PYQs, test series and current affairs, and in this priority order only. ऊपर नीचे जंबल नहीं किया था इसको. Whether it was my second attempt, third attempt or fourth attempt, I stuck to this only कि सबसे पहले NCERTs को एक बार ग्लांस थ्रू करना 6 to 10 तक का, 11-12 को अच्छे से पढ़ना बिकॉज उनमें से क्वेश्चंस आ रहा होता है. सेकेंडली रेफरेंस बुक, स्टैंडर्ड बुक जो हर सब्जेक्ट की एक होती है उसको पढ़ना, कंप्लीट करना, उसको रिवाइज करना. थर्ड इज द PYQs. जैसे ही आपने कंप्लीट किया PYQs पढ़ना शुरू कर दीजिए. PYQs कंप्लीट करने के बाद आप टेस्ट सीरीज लगाइए, तो उससे आपको एक तो ये पता चल जाएगा कि टेस्ट का जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस है वो कैसा है, उसकी कितनी यूटिलिटी है. दूसरा आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है. टेस्ट सीरीज लगाने के बाद आई सजेस्ट दैट यू डू करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स, डूइंग करंट अफेयर्स इन द सेंस दैट यू डोंट हैव टू रश आफ्टर एवरीथिंग. करंट अफेयर्स को यू कैन बी वेरी लिमिटेड. जो एक स्टैंडर्ड ईयरली कंपाइलेशन आता है पूरे 365 डेज का, उस ईयरली कंपाइलेशन को आप पढ़ सकते हैं. क्योंकि ये बहुत बल्कि हो गया है तो आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए. उसके बाद बहुत सारे ऐसे हॉट टॉपिक्स आते हैं जो बहुत सारे मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स अपना रिलीज़ करते हैं कि भाई ये 50-60 टॉपिक हैं हर सब्जेक्ट के. सो यू कैन गो थ्रू देम एंड रिवाइज देम मोर रिलीजियसली. Now, regarding the note making aspect of it, which is a very generally asked question, so I did not make any separate notes for prelims. जो भी फाउंडेशन के नोट्स थे उनको ही यूटिलाइज किया था. बट what I did was I made a separate register or a booklet for the prelims learnings. तो जो भी PYQs किए उनमें कुछ नया मिला, उसको एक जगह पे उस टॉपिक पे या वो सब्जेक्ट के सेक्शन में उसको लिख दिया. फिर टेस्ट सीरीज लगाई, उसमें जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, जो टॉपिक पे बार बार गलती हो रही है, उसको रिवाइज किया और उसके शॉर्ट नोट्स थोड़ा सा 5 लाइन 10 लाइन का वहाँ पर बना लिया. साथ ही साथ टेस्ट सीरीज में जो नया कंटेंट मिला, कुछ ऐसा क्वेश्चन नया मिला जो नहीं पढ़ा है या उस साल के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, फॉर एग्जाम्पल दी टर्मरिक बोर्ड, तो उसको ले जाकर अपनी उसी सब्जेक्ट के सेक्शन में उसको लिख लिया. अब धीरे धीरे करते करते ये सारा जो कंपाइलेशन है वो आपका रेडी हो जाएगा. जब आप बहुत सारे मल्टीपल टेस्ट लगा लोगे, PYQ लगा लोगे, फिर जब आप करंट अफेयर्स भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा देखते रहोगे तो यू विल रियलाइज कि करंट अफेयर्स के जो थोड़ा थोड़ा हॉट टॉपिक्स थे वो आपके नोट्स में धीरे धीरे आते जा रहे हैं. नोट्स एज इन जो प्रीलिम्स आपकी लर्निंग शीट है उसमें आपके आते जा रहे हैं. साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स की यूटिलिटी है वो भी आपको समझ में आने लगेगी. तो इस टाइप से जो आपकी लर्निंग शीट बनेगी जो प्रीलिम्स की अलग अलग सब्जेक्ट्स की, वो इतना हैंडी, क्योंकि आपके खुद के रिटन होंगे, बहुत ज़्यादा हैंडी होगी. सो यू विल बी एबल टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स बिफोर गोइंग इनटू द एग्जामिनेशन हॉल. तो कभी कभी ऐसा भी होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज द थिंग विथ मी कि आई एम नॉट दैट चिल पर्सन बिफोर द एग्जामिनेशन. बहुत लोग होते हैं जो शांत दिमाग से जाते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते. आई एम नॉट लाइक दैट. हमें लगता था कि भाई लास्ट मोमेंट तक भी अगर किताब हाथ में रहे, कुछ ना कुछ दिमाग में जाता रहे तो जोन में रहते हैं. योर ब्रेन वर्क्स लाइक दैट ओनली कि ठीक है अभी से पढ़ते आ रहे थे, फिर से 1-2 घंटे और पढ़ना ही है पेपर में बैठ के, तो एकदम से ब्रेक नहीं आता है. सो आई यूज्ड टू डू दैट ओनली.
तो अपना जो रजिस्टर था जिसमें सारे सब्जेक्ट्स को सेग्रीगेट करके नोट्स बना रखे थे, उन सबको उस रजिस्टर को ही पेपर में जाने से पहले आई रिवाइज्ड, जिसमें से लास्ट पेज पर नेटो की कंट्रीज लिखी हुई थी विच आई डिस्कस्ड। तो वो क्वेश्चन फॉर्चुनेटली मिल भी गया था पेपर में। सो दो दैट वाज माय नोट मेकिंग एस्पेक्ट ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अगेन ऑल दीज थिंग्स, जो कंटेंट को लिमिटेड रखना, उससे फोमो नहीं हुआ, टेंशन नहीं हुई कि ये भी कवर करना है वो भी कवर करना है, अननेसेसरली चीज़ों के पीछे भागना नहीं पड़ा, PYQs पहले कर लिए, तो उससे ये रियलाइज़ हो गया था कि अच्छा ये टेस्ट सीरीज़ कितनी अच्छी है, इसके क्वेश्चंस कितने रेलेवेंट हैं, कितने वर्दी हैं। कई बार मार्क्स नहीं आते तो थोड़ा डीमोटिवेटिंग भी रहता है, तो उसको उतना किया था। CSET इज़ वन एस्पेक्ट दैट आई हैव नॉट डिस्कस्ड बिकॉज CSET में आई हैव बीन एबल टू क्लियर द कट ऑफ डिसेंट विथ डिसेंट मार्क्स। उसमें आई हैड अ वेरी सिंपल thing that English was my strong part, maths and quant and the reasoning was okayish. So in the first hour of the examination I used to do my maths, उसको कंप्लीट किया। जितना आप बेस्ट दिमाग लगा सकते हो, जितने नए नए क्वेश्चंस आप ढूंढ के सॉल्व कर सकते हो वो सॉल्व कर लिए। एंड इन दी नेक्स्ट 1 hour विच वॉज द डिसाइडेड कि 1 घंटा कंप्लीट हुआ, irrespective of how many questions you have done, you have to switch to reading comprehension. So I used to switch to reading comprehension. उसमें I used to do fast, धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि अच्छा इस टाइप के आंसर्स बन सकते हैं, इस टाइप के ऑप्शंस गलत होंगे। उसमें कई बार वो ट्रिकी क्वेश्चंस भी देते हैं, उनको फंसाते भी हैं, तो इट्स ऑल राइट अगर आप एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन छोड़ भी रहे हो जहाँ पर आप अननेसेसरीली रिस्क नहीं लेना चाहते आरसी में, तो वो भी किया। और उसको अगर 45 मिनट्स में कंप्लीट हो गया या 50 मिनट्स में कंप्लीट हो गया, तो जो बाद के 10 मिनट बचते थे उसमें आई यूज्ड टू गो बैक टू द मैथ्स, द क्वांट एंड द रीजनिंग वाला सेक्शन, और उसमें अगर 3-4 क्वेश्चन हो गए तो उनको सॉल्व कर लेते थे। There's 2 more things that I want to do, that I want to share. That first of all, I used to fill my OMR right while solving the question. जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया OMR में फिल किया, क्वेश्चन सॉल्व किया OMR में फिल किया, तो उससे क्या हुआ कि बाद में पेज पलट के OMR भरने का टेंशन नहीं होता था। दूसरी बात, वो गलती होने के चांस कम हो जाते थे कि आप गलत क्वेश्चन की OMR का ऑप्शन गलत में भर दोगे, तो वो वाली मिस्टेक रिड्यूस हो जाती थी। साथ ही साथ टाइम भी बचता था, फटाफट भरते जा रहे हो, और आपने जब एक बार भर दिया तो फिर आप वापस आके उसको दोबारा देखते नहीं हो, उसको सेल्फ डाउट में नहीं जाते हो कि शायद ये ऑप्शन है या वो ऑप्शन है। यू हैव डन इट, मूव फॉरवर्ड। दूसरी चीज आई सजेस्ट इज द विजुअलाइजेशन टेक्निक इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई बिलीव जो भी आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में करने जा रहे हो, थिंग्स दैट माइट गो रॉन्ग, थिंग्स दैट माइट गो राइट, इन दोनों चीज़ों को आपको थोड़ा विजुअलाइज कर लेना चाहिए। बिकॉज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जितना एकेडमिकली टफ है उतना वो नॉन एकेडमिकली भी टफ है। आपकी फिजिकल रेजिलियंस को टेस्ट करता है। आपको गर्मी में एग्जाम लिखना है, प्रॉपर शेल्टर नहीं होता है, खाने के लिए ज़्यादा आइटम नहीं होते हैं, स्ट्रेस होता है, हो सकता है आपने एक रात पहले नींद ठीक से ना ली हो, तो ये सारी चीज़ों को आपको पहले ही विजुअलाइज कर लेना होता है कि इफ दिस थिंग हैपन्स दैट हाउ एम आई गोइंग टू डील विद इट, इफ दिस थिंग हैपन्स दैट हाउ एम आई गोइंग टू डील विद इट, इफ दिस थिंग हैपन्स। तो यू हैव इमेजिन द सिनेरियोज एंड यू हैव प्रिपेयर्ड योरसेल्फ फॉर देम। तो जितना आपको उस दिन नया कम मिलेगा उतना आपका दिमाग ज़्यादा रिलैक्स्ड रहेगा, आप अपना सब कुछ प्रिपेयर करके जा सकते हो। आई इवन प्रिपेयर्ड जो 2 आवर का 3 आवर का जो ब्रेक होता है बिटवीन दी GS एंड दी CSET, उसमें भी आई डिसाइडेड कि ठीक है आई कम आउट ऑफ द सेंटर, पेपर को बैग में डालेंगे, थोड़ा सा ग्लूकोज पियेंगे, थोड़ा सा खाना खाएंगे, अगर कहीं अच्छा पेड़ मिल गया आई विल सिट देयर एंड स्लीप फॉर 10-15 मिनट्स ऑल्सो। तो थैंकफुली एक पेड़ मिल गया था, अच्छी सी छाँव थी, थोड़ी घास थी, आई स्लेप्ट फॉर 15-20 मिनट्स, टाइमर लगाया अपने फ़ोन में, उठे, फिर दोबारा से थोड़ा सा ग्लूकोज पिया और अपना PYQs जो CSET के थे जो सॉल्व किए हुए थे उनको दोबारा देखा, रिवाइज किया और शांत दिमाग से वापस से अपना CSET पेपर लिखने गए। तो इस टाइप से जब आप विजुअलाइज कर लेते हो चीज़ों को, आप अपने छोटे छोटे मूवमेंट्स को प्लान कर लेते हो, आपको कहीं पर भी ये नहीं सोचना होता है कि अब मुझे क्या करना है। एटलीस्ट उस दिन वो 6 घंटे 8 घंटे आपको ये चीज़ नहीं सोचनी होती कि अब मुझे क्या करना है। आपके दिमाग में पहले से सब कुछ प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि मैं ये करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ। तो आपने 10 चीज़ें प्लान की हैं तो हो सकता है उनमें से 8 चीज़ें हों, 9 चीज़ें हों, उतना हिट रेशियो रहता है, थोड़ी प्रोबेबिलिटी रहती है, कुछ इधर उधर हो सकता है, बट मोर और लेस यू आर प्रिपेयर्ड मेंटली फॉर दैट डे। तो आपका दिमाग का जो सारा फोकस होगा वो एग्जामिनेशन में जाएगा, उस पेपर को सॉल्व करने में जाएगा। उस पेपर को सॉल्व करने के लिए भी विजुअलाइजेशन टेक्निक को आई रिकमेंड कि आप पेपर में बैठे हो, आपके पास 2 घंटे हैं, देन यू हैव टू सेट बेंचमार्क्स कि अगर 10 मिनट निकल गए हैं, अगर 15 मिनट निकल गए हैं, डिपेंड ऑन आप क्या बेंचमार्क सेट करते हो। अगर 15 मिनट निकल गए देन आई हैव टू बी डन विद दिस अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस। अगर वो क्वेश्चंस वहां पर उतने सॉल्व नहीं हुए हैं
देन यू हैव टू कॉम्पनसेट फॉर दैट विद इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स. आप उसको लास्ट में नहीं देख सकते. तो अगर आपने 15 मिनट में सोचा है कि मुझे, आई हैव सीन पीपल हु कंप्लीट देयर पेपर विद इन 1 hour 20 minutes, विद इन 1 hour 30 minutes. तो ट्राई टू डू दैट. उसको जब आप मॉक टेस्ट इतने में सॉल्व करोगे तो एक्चुअल पेपर आपको कम लेंदी लगेगा. अगेन फिर उसमें आपके बेंचमार्क सेट है कि 15 मिनट में मुझे इतने क्वेश्चन करने हैं. अगर मान लीजिए उतने 15 मिनट में आपके 2 क्वेश्चन कम सॉल्व हुए, देन यू हैव अ न्यू टारगेट कि अगले 15 मिनट में मुझे पुराना वाला टारगेट तो कंप्लीट करना है प्लस 2 क्वेश्चन मुझे करने हैं. तो इस तरीके से आप पूरे 1 घंटे का 1.5 घंटे का टाइम मैनेज कर सकते हो. तो लास्ट में 10 मिनट का 15 मिनट का बफर भी मिल जाता है जिसमें आप दोबारा से सी थ्रू कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को जिनमें आप डाउट है, डाइसी है, अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है. तो थोड़ा सा बफर रहता है. सो कंप्लीटिंग योर पेपर फास्ट, कंप्लीटिंग इट इन बेंचमार्क्स, थोड़ा थोड़ा टाइम सेट करके. बिकॉज आई हैव सीन पीपल जो ऐसे बेंचमार्क नहीं करते हैं, फिर उन्हें लास्ट की आधे घंटे में रियलाइज होता है कि बहुत सारा पेपर बचा हुआ है. तो आप उस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हो. साथ ही साथ यू कैन प्रैक्टिस सॉल्विंग दी कंप्लीटिंग द पेपर विद इन टाइम लिमिट. जो 2 घंटे का टाइम है उससे थोड़ा कम ही मान के चलिए. ट्राई टू फिनिश योर मॉक्स विद इन 1 hour 30 minutes. तो उससे आपकी स्पीड बन जाएगी, थोड़ी थोड़ी एक्यूरेसी भी बढ़ने लगेगी और एक्चुअल पेपर जो एक्चुअली लेंदी आने वाला है उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे. तो वो 2 घंटे का टाइम आपको क्रंच नहीं रहेगा. यू विल बी एबल टू डील विद इट. सो दोज वर माई टेकअवेज कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे करनी है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन वाले दिन क्या करना है और उस दिन माइंडसेट को कैसे रखना है. इस सब के साथ ब्लेसिंग्स वगैरह मिल जाए then hopefully you'll go through. So that was my takeaway for the prelims examination. 4 साल की जर्नी का यही सार है कि चीज़ों को कम रखना, लिमिटेड रखना, ठंडे दिमाग से, शांत दिमाग से पेपर लिखना और कुछ चीज़ें भगवान के हाथ में छोड़ देना. I think that was my entire journey and that has worked for me and I'm very hopeful that I'll be able to contribute even a small little bit to your journey. Then I think I have done my part and again wishing you all a very happy journey, wishing you all very best. आप अच्छे से इस एग्ज़ाम को दीजिए और इस एग्ज़ाम से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. थैंक यू.